morning class 6 and welcome back all of you, as now your exams first unit test you have completed, and I hope you all have done all of your exams very well. So from today we'll be continuing our online classes, and we'll be continuing our chapter also. Our chapter was separation of substances. In Hindi it was padartho ka prithakkaran, and in English it is separation of substances. So in the previous video we have already seen that how many types of substances are there. There were pure substances, impure substances. Impure substances को mixed substances भी हम कह सकते थे, and then mixed substances के two parts फिर से होते थे. That was homogeneous mixture and heterogeneous mixture, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण. ठीक है, ये सब ने हम ये सारे टॉपिक्स हमने देख लिए थे. And today we'll be continuing with next topic, that is methods of separation. कौन कौन से methods यूज़ किए जाते हैं substances को separate करने के लिए. Before that we have to see what is the need for separation. Why do we need to separate the substances? Means impure में से pure को कैसे अलग किया जाता है? Why do we need to separate them? क्या ज़रूरत है हमें substances को separate करने की? सबसे पहले तो हमें क्यों ज़रूरत होती है impure में से pure को separate करने के लिए? Because when we take out the pure substances, that pure substances is used to make further things. Like अगर चावल है, if you take rice, before cooking your mother must be taking out the unwanted particles from that rice. जैसे कि चावल में से कंकड़ बीनती होंगी, उसको ऐसे फटकती होंगी ताकि उसमें से डस्ट पार्टिकल्स अलग हो जाते होंगे. So that is all the separation means, methods to separate out the unwanted things. So we need to separate out these unwanted things to get the pure substances out of it. Okay. Then next is कि for example salt is there. Salt कहाँ मिलता है हमें? नमक कहाँ मिलता है हमें? नमक मिलता है हमें समुद्र में. ठीक है, अब समुद्र में आप अगर घूमने कभी गए होंगे तो you must be knowing or you might have read also that in sea, that sea water is salty water. Salty water इसीलिए उसको कहा जाता है क्योंकि उसमें नमक dissolved form में present होता है. And जो हम लोग नमक अपने घरों में भी खाते हैं वो भी कहाँ से आता है? That is also extracted from the sea. Okay, sea से ही उसको extract किया जाता है. There are processes which are involved in the extraction, or you can say in the separation of that substances. Means sea water तो आप देख रहे हैं, sea water में से अगर आप अपने हाथ में ही अगर आप समुद्र का पानी लेंगे तो आपको उसमें नमक दिखाई देगा? इसमें आपको नमक नहीं दिखाई देगा, because it is present in dissolved form. ठीक है, so एक process है that is known as evaporation, that is carried out to separate salt from sea water. ठीक है, तो उसको फिर उसको separate किया जाता है. जो हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं LPGs. LPGs क्या है? आप आगे पढ़ेंगे, you will be studying that कि LPG, that is called the liquefied petroleum gas. LPG का फुल फॉर्म होता है जो हम लोग अपने घरों में जो गैस सिलेंडर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, खाना बनाने के लिए जो गैस सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, that is liquefied petroleum gas. ठीक है, that liquefied petroleum gas is, you can say, the compressed natural gas. वो कहाँ से मिलती है? वो सी बेड के नीचे, ठीक है, सी बेड के नीचे कोल का फॉर्मेशन होता है. वहाँ से फिर कुछ प्रोसेसेस हैं, ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर कोल का फॉर्मेशन होता है. उसके बाद जो लेयर्स बनती हैं समुद्र के नीचे, बहुत सारी टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कुछ लेयर्स बन जाती हैं.
उसी के नीचे कोल का फॉर्मेशन होता है और उस कोल निकाला जाता है। कोल के ऊपर कुछ लेयर्स रहती हैं जिसमें कि पेट्रोल रहता है। पेट्रोल के ऊपर एक लेयर होती है जिसमें ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है इसको निकाला जाता है, उसको यूज़ किया जाता है हमारे एलपीजी गैस सिलेंडर्स में। पेट्रोल को निकाला जाता है फॉर द यूज़ ऑफ द व्हीकल्स एंड नॉन व्हीकल्स वगैरह में पेट्रोल डालने के लिए डीजल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है टू यूज़ दो सब्सटेंसेस। कहीं पर भी कोई भी सब्सटेंस है कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको सेपरेट किया जाता है टू यूज़ देम इन द प्योर फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज वाई the reason is that is why we used to separate out the substances, means उसमें से impure substances में से या mixed substances में से pure substances को separate करने के लिए हमें separation करना ज़रूरी होता है। Then the methods, what are the methods used for the separation? तो हमने बताया था कि कई तरह के मिक्सचर्स होते हैं। सॉलिड मिक्सचर्स हैं, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स हैं, लिक्विड मिक्सचर्स हैं, लिक्विड गैस मिक्सचर्स हैं। तो कई तरह के मिक्सचर्स हैं, उन सबको सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। द फर्स्ट मेथड वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इज टू सेपरेट सॉलिड मिक्सचर्स, मीन्स ठोस में से ठोस पदार्थों को कैसे सेपरेट आउट किया जाता है। तो द फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग मेथड मीन्स हाथ से जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हैंड पिकिंग मेथड, जैसे कि जस्ट नाउ आई टोल्ड यू वन एग्जाम्पल ऑफ राइस। अगर आपकी मम्मी लोग खाना बनाने चलती हैं तो जो चावल होता है उसमें से पहले कंकड़ बीनती हैं या तो फिर उसको फटकती हैं। ऐसा क्यों करा जाता है? ताकि उसमें से अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स निकल जाएं। बीनने से क्या होता है, जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होंगे, स्टोन पार्टिकल्स होंगे, कुछ और अनवांटेड पार्टिकल्स, तो दोज अनवांटेड पार्टिकल्स विल ऑल्सो बी सेपरेटेड आउट। दैट इज ऑल द अबाउट द हैंड पिकिंग मेथड। राइस में से, गेहूँ में से, एंड गेहूँ है, चावल है, इस तरह से हाथ से बीन करके हम अनवांटेड पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट मेथड इज सीविंग। हैंड पिकिंग मीन्स बीनना, ठीक है। हैंड पिकिंग का मेथड होता है, हिंदी मतलब होता है बीनना। देन नेक्स्ट इज सीविंग। सीविंग इन हिंदी इट इज़ नोन एज चालना। आपने अपने घरों में मम्मी लोग को देखा होगा कि जब वो रोटी बनाने चलती हैं तो रोटी बनाने से पहले वो आटे को क्या करती हैं, एक सीव मीन्स छलनी जो भी आप कहते हो। तो उस छलनी में इतनी बड़ी गोल सी छलनी होती है, उसमें क्या करते हैं, उसमें आटे को डाल देते हैं। उसके बाद उसको ऐसे ऐसे चाल करके उसमें से जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस होंगे वो उसमें रह जाते हैं, छन्नी में उसकी जाली पर रह जाते हैं। और जो प्योर व्हीट फ्लोर होता है, मीन्स जो आटा होता है, वो नीचे किसी बर्तन में निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से आटे में से अनवांटेड पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज अनदर मेथड विच इज नोन एज चालना या सीविंग, ठीक है। जब आप चाय जब आप लोग अगर बहुत से बच्चों को आती होगी चाय बनाने, चाय में जब कप में जब उसको डाला जाता है तो छन्नी लगाई जाती है। तो छन्नी इस वजह से लगाई जाती है कि चाय बनाते वक्त हम लोग चाय पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, इलायची डालते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर बीन पुट टू मेक अ टी। सो
all those substances will be separated in that seed, in that छोटी सी जो हम लोग चाय के लिए छन्नी यूज़ करते हैं, that चाय की पत्ती और ये सब उसको रोक देता है, और जो प्योर टी होती है that is poured in the cup. तो इस तरह से सॉलिड मिक्सचर्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं. तो द नेक्स्ट मेथड वाज सीविंग, और इट इज नोन एज चालना इन हिंदी. देन नेक्स्ट इज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग को आप हिंदी में भी थ्रेशिंग लिख सकते हैं, इसको कूटना भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको फटकना भी कह सकते हैं. इसमें क्या किया जाता है दैट इन थ्रेशिंग व्हेन द क्रॉप्स आर बीन हार्वेस्टेड, मतलब कि जब फसल की कटाई हो जाती है, लाइक गेहूँ और चावल के खेतों में जब उनकी कटाई कर दी जाती है, तो जो एक प्लांट्स का, मतलब मान लो कि चावल है या गेहूं का जो प्लांट होता है, उसको एक छोटा सा गट्ठर बना के रख लिया जाता है, मीन्स पूरा एक बल्क बना के रख लिया जाता है. उसको क्या किया जाता है, टू सेपरेट आउट द ग्रेन्स फ्रॉम दैट प्लांट्स, व्हाट इज नीडेड, व्हाट इज डन, कि उसको एक ईंट पर कह लो या किसी हार्ड जगह पर उसको ऐसे बंच को या बल्क को पूरा उठा करके ज़ोर ज़ोर से उस पर पीटा जाता है. ठीक है, जब उसको ज़ोर ज़ोर से उसमें पीटा जाता है, तो जो उसको ज़ोर ज़ोर से पीटने पर जो ग्रेन्स होते हैं वो उस प्लांट में से, मीन्स वीट प्लांट हुआ या राइस का जो क्रॉप्स का प्लांट हुआ, उनमें से वो जो ग्रेन्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. ठीक है, सो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट द ग्रेन फ्रॉम द क्रॉप प्लांट, दिस मेथड इज बाय बीटिंग, इसको एक तरह से पीटना कहते हैं. ठीक है, बाय बीटिंग दिस, थ्रू दिस मेथड दिस द ग्रेन्स आर बीन सेपरेटेड आउट. ओके, देन नेक्स्ट मेथड इज थ्रेशिंग. हो गया, थ्रेशिंग के बाद है विनोइंग. थ्रेशिंग को आप हिंदी में भी थ्रेशिंग ही लिख सकते हैं. विनोइंग को हम ओसाना कहते हैं. थ्रेशिंग को आप फटकना भी कह सकते हैं, और इसे ओसाना विधि कहते हैं. ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है, ओसाना विधि में, कि जैसे मैंने अभी बताया कि ग्रेन्स को ऐसे पीट करके पटक करके उसको अलग कर लिया जाता है. तो एक जगह पे वो अलग हो जाते हैं, उनको इकट्ठा कर लिया जाता है. एट दैट टाइम व्हेन दीज ग्रेन पार्टिकल्स, मीन्स जो ग्रेन्स हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, एंड आफ्टर दैट व्हाट इट इज डन, दीज ग्रेन्स, उसको क्या किया जाता है, एक ऊंची जगह पे खड़ा हो जाए जाते हैं, और सूपा यू माइट हैव सीन, बांस की बनी होती है. ठीक है, इन दैट सूपा, ऊंची किसी जगह पे खड़े होकर के सूपा से ऐसे उसको हवा में ऐसे उछाल करके उसको, जो भी ग्रेन्स सूपा में रहते हैं, उसको ऐसे करके गिराया जाता है. एंड जब उसको गिराया जाता है तो ग्रेन्स, जो उसमें जो ग्रेन्स होते हैं, मतलब जो गेहूँ और चावल के जो दाने होते हैं, दीज ग्रेन्स फॉल due to being heavy, it falls directly on the ground, while the dust particles being lighter, they flew away with the wind. ठीक है, खेतों में ये काम किया जाता है, खुले मैदान में कह लीजिए, कि जब ग्रेन्स को कलेक्ट कर लिया जाता है, उसको फिर सूपे में डाल करके एक ऊंची जगह पे खड़े होकर के उसको ऐसे ऐसे करके हिलाया जाता है. ठीक, उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो ग्रेन्स होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं, तो वो ऐसे हिलाने पे सीधे ज़मीन में हमारे नज़दीक गिरते हैं, और जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, दे आर बीइंग अ लिटिल स्लाइटली लाइटर, मीन्स वो थोड़ी लाइट होती है, जिसकी वजह से वो हवा से दूर उड़ जाती हैं. सो इन दिस वे dust particles are separated out from the grains. That method is known as winnowing. ठीक है, then in solid mixtures, the last method of separation is
मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन। यू माइट हैव सीन द रैग पिकर्स, जो लोग सुबह कूड़ा बटोरते हैं, ठीक है, रैग पिकर्स, दे आर नोन एज रैग पिकर्स, जो ठेले पे आते हैं, कूड़े में से कुछ कुछ सामान, ज़रूरी चीज़ें उठा के ले जाते हैं, ठीक है। और वो क्यों उठा के ले जाते हैं? दे कलेक्ट ऑल दीज थिंग्स टू फॉर द रिसाइकलिंग पर्पज़। कुछ आते हैं ना, अपने पीछे एक बोरा लेके चलते हैं, एक बड़ा सा बोरा लेके चलते हैं, और वो अपने उसमें से बॉटल्स, कुछ उनके लिए जो हमारे लिए अननेसेसरी है, हमारे लिए वेस्ट है, उनके लिए वो कुछ ऐसे ज़रूरी सामान है जिसको कि रिसाइकिल किया जा सकता है। सो फॉर दैट रिसाइकलिंग पर्पज़ दे कलेक्ट ऑल दीज थिंग्स। तो दीज रैग पिकर्स दे टेक अ मैग्नेट विद देम। उनके पास एक लंबी सी रॉड होती है, वो मैग्नेट की कुछ बनी होती है कि कूड़े में से कुछ ऐसी जो हम लोगों के लिए अनवांटेड चीज़ होगी, दे इफ़ एनी आयरन ऑब्जेक्ट इज़ देयर प्रेजेंट इन दैट वेस्ट प्रोडक्ट, तो उस मैग्नेटिक रॉड से या उस मैग्नेटिक उससे वो आयरन की चीज़ अट्रैक्ट होकर के उनके पास चली आएगी, ठीक है। दैट इज़ द मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेट से आयरन की चीज़ों को अट्रैक्ट करके उसको सेपरेट आउट किया जा सकता है। अब कूड़े में अगर कूड़े में कोई ऐसी चीज़ फेंक दिया है जो कि किसी के लिए अननेसेसरी है, बेकार चीज़ है, तो जो रैग पिकर्स होते हैं वो उसको रिसाइकिल करने के लिए उस आयरन ऑब्जेक्ट को दे कैन नॉट फाइंड आउट, सो फॉर दैट दे यूज दैट मैग्नेटिक थिंग टू अट्रैक्ट दैट आयरन ऑब्जेक्ट, और फिर उसको कलेक्ट करके उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। सो मैग्नेटिक सेपरेशन, इन दैट मैग्नेटिक सेपरेशन द मैग्नेट इज यूज्ड टू कलेक्ट एंड दोज आयरन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दोज आयरन ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग सेपरेटेड आउट यूजिंग दिस मैग्नेट, ठीक है। तो these methods were used to separate out solid mixtures, means solid substances में से another solid substances को extract करना, उसको निकालना, फिर उसको further use करना। तो these hand picking, then sieving, चालना, threshing, winnowing, then magnetic separation. These 5 methods are there which are used to separate out solid mixtures, ठीक है। In our next video, we'll be reading about how to separate solid liquid mixtures, ठीक है। So by this I wrap up my video. We'll see you in next video. Till then, have a nice day and take care.